Hello students, good evening to all of you. In this video also we will continue with the numericals. Okay, I'm going to go to the NCERT exercise question 5.15. Okay, two bodies of masses 10 kg and 20 kg respectively kept on a smooth horizontal surface. जैसे ही वर्ड आ जाएगा स्मूथ होरिजेंटल सरफेस मतलब क्या, उस सरफेस का कोई फ्रिक्शन नहीं है क्योंकि स्मूथ लिखा है ना. So mind it, are tied to ends of a light spring. So there are two masses, M1 10 kg, M2 20 kg. Okay, they are placed in a horizontal surface which is smooth. That means there is no friction. Okay, they tied together with a string T. So what will happen? Since string है, that means tension लगेगा. So tension always at opposite to the point of contact. This is point of contact opposite to T tension. Point of contact opposite to T tension. Both the tension will be equal. TT. Why? Because the string is continuous. These things I have told you. Now the question is saying a force of 600 Newton is applied, a horizontal force of 600 Newton applied to point 1A, point 1, point 2B along the direction of string. What is the tension of the string in each case? Now two cases एक बार. This is case 1. Case 1 in which the force is applied to the first body A, name it. Next we will apply the force to the second body M2 and we will find the tension. Okay. Now when we apply the force here, the whole system will move in this direction with acceleration. Okay. So we need to find the tension. How to find the tension? The body move कर रहा है, dynamics of force लगाओ, dynamic equations of force लगाओ. एक एक बॉडी के साथ काम करते हैं. M1 के साथ देखो, M1 में एक टेंशन इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है. Okay, and the body is moving in this direction. That is what? उस तरफ वाला फोर्स माइनस टेंशन इक्वल्स टू M1 है. This is equation 1. Okay. Next, अगर मैं M2 के साथ काम करूं तो इस तरफ टेंशन लग रहा है, इस तरफ कुछ नहीं लग रहा है, जीरो, कुछ नहीं है. हाँ, अगर ये नेक्स्ट एग्जाम में मान ले क्वेश्चन आ गया जिसमें स्मूथ नहीं लिखा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन लगेगा, यहाँ पे एक फ्रिक्शन लगेगा, तब यहाँ पे और एक फोर्स लगेगा फ्रिक्शन. अंडरस्टैंड? तो इसका इक्वेशन क्या होगा? बॉडी इधर जा रहा है, तो व्हाट इज दैट? T माइनस जीरो, T माइनस उस तरफ को इक्वल्स टू M2A. क्लियर? I hope you understand class what is going on. तो यहां से टेंशन निकल गया, M2 into A, यहां से A निकाल लो. इन दोनों इक्वेशन से तुम A और टेंशन निकाल लो. दैट इज योर जॉब. ये T का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, फॉर्म दे कैलकुलेट वैल्यू A सब्स्टिट्यूट है. ओके, नाउ हाउ टू डू द कैलकुलेशन, दैट इज योर जॉब. I think you know how to solve these two equations. F का value already knows 600 Newton. Now next case 2. In case 2 what is happening? This is the horizontal surface. This is mass M1. This is Y. This is mass M2. इधर टेंशन लगेगा, इधर टेंशन लगेगा. ओके, इस केस में मैंने टेंशन को T लिया है, इस केस में तुम टेंशन को T1 ले लो, और जो फोर्स लग रहा है वो M2 में लग रहा है. ओके, अगेन देयर विल बी टू इक्वेशंस. सिंस द सरफेस इज हॉरिजॉन्टल दैट मींस नो फ्रिक्शन है. सरफेस इज स्मूथ, नो फ्रिक्शन. तो चलो एक एक करके इक्वेशन बनाते हैं. M1 के साथ इक्वेशन बनाओ. इधर टेंशन T1 लग रहा है एंड लेट द बॉडी इज मूविंग विद एक्सेलरेशन A1. इधर कोई फोर्स नहीं लग रहा है एंड बॉडी इधर जा रहा है, तो कितना हो जाएगा? T1 माइनस जीरो, इस तरह वाला फोर्स माइनस उस तरफ वाला फोर्स. बॉडी इज गोइंग दैट डायरेक्शन, दैट मींस दिस साइड फोर्स माइनस ऑपोजिट फोर्स इक्वल्स टू नेट फोर्स. दिस इज इक्वेशन 1. अब M2 के साथ डील करो. इधर फोर्स लग रहा है F, इधर टेंशन लग रहा है T1 और बॉडी इधर जा रहा है A1 से, मतलब उस तरफ वाला फोर्स माइनस इस तरफ वाला फोर्स इक्वल्स टू नेट फोर्स. ओके, अगेन यू कैन सॉल्व these two equations, get the value of tension and acceleration. I hope you understand. You got both the values of tension. अब इस क्वेश्चन में एक अलग हो सकता है, एक चीज ऐड कर सकते हैं आपके एग्जाम में, लाइक बोल देंगे that the string can hold a maximum tension of 500 Newton. That means what? ये स्ट्रिंग में अगर टेंशन 500 न्यूटन से ज्यादा लगे तो ये स्ट्रिंग टूट जाएगा. देन विच इज द करेक्ट मेथड टू पुल द बॉडीज? तो तुम देख लो कि इसका टेंशन 500 से कम है, दैट मेथड विल बी यूज्ड. ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5.14. अगेन गो टू NCERT 5.14. In this question, XT graph is given to you. This graph is given to you. XT graph. In the book, this graph is drawn in blue line. That means this whole thing is the graph. Okay, 3, 4. X is in meter given to you. T is in second given to you. This blue line I'm making it as dark. Rest is the dotted line. The dotted line shows the axis, and this dark line shows the graph.
Done. I'm naming this graph as BOCD just for my simplicity, how to write. Okay, लिखने में थोड़ा help करेगा, so I'm naming that. Now, what the question is? The question is, this is a graph of a XT graph of a mass of a body of mass 4 kg. We need to find first point, force on the particle. वो जो मास है उसका, वो जो पार्टिकल है उसका मास 4 kg, उस पार्टिकल का फोर्स निकालना है at 3 different times. One, t less than 0, another t greater than 0 less than 4 second, next t greater than 4 second. इस रीजन t less than 0, यहाँ पे उस बॉडी में फोर्स निकालना है, 0 और 4 के बीच में फोर्स निकालना है, 4 से ज्यादा में फोर्स निकालना है. तो व्हाट इज फोर्स? मास ऑफ एक्सेलरेशन. तो मुझे देखना पड़ेगा एक्सेलरेशन आएगा कि नहीं आएगा. एक्सेलरेशन अगर हुआ बॉडी में तो फोर्स लगेगा, अगर एक्सेलरेशन नहीं हुआ फोर्स नहीं लगेगा. एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन. सॉरी, चेंज इन वेलोसिटी, राइट, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन. सॉरी, ठीक ही था, दिमाग खराब हो गया. ओके, तो आई हैव टू सी वेदर द वेलोसिटी इज चेंजिंग और नॉट. सो मुझे फोर्स निकालना है, फोर्स निकालने के लिए एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन के लिए मुझे देखना पड़ेगा वेलोसिटी चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है. तो अब मैं देखूंगा कैन बी कैलकुलेट वेलोसिटी फ्रॉम दिस ग्राफ. See how I am thinking. I am thinking backward. I need to calculate force. For force, I need acceleration. For acceleration, I need velocity. That means I will think, can we calculate velocity from this graph? तो हमने graphical method पढ़ा है. X and t है. X by t, y by x axis. Velocity आता है. That means slope of the xt graph is velocity. So I will check out the velocities expression. So for t less than 0, में ये है ना graph OB. That means velocity will be slope of this OB. That thing we have studied these things in uniform motion chapter. Slope of OB. तो ये लाइन पैरेलल है, तो टाइम 0, तो वेलोसिटी is 0. Since velocity is 0, acceleration is 0. Acceleration is 0, force is 0. Now, greater than 0 and less than 4 second. What is the velocity? Now, ये थोड़ा ध्यान से सुनना. You have to write in your own language here something. हाँ, खुद से लिखो कुछ चीजें जो कि हम सोल्यूशन में नहीं दिखाते हैं. We understand that the slope of xt graph is velocity. And in the third chapter I taught you, slope निकलता है लाइन का. तो जितने लाइन होंगे उतने वेलोसिटी होंगे. एक लाइन, एक वेलोसिटी, दो वेलोसिटी, तीन वेलोसिटी. अब 0 और 4 के बीच में एक ही लाइन है, मतलब सिंगल वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा. क्लियर? क्लियर? अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा तो एक्सेलरेशन 0 होगा, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है. अगर 0 और 4 के बीच में डबल लाइन होता, अलग अलग लाइन होते, then I can say velocity is changing because different line will have different slopes. You understand this? That you will write down in graph. So what I did here, t less than greater than 0, less than 4. What is velocity? Slope of OC. This single line, single slope. That is tan theta. So tan theta कितना होगा? Tan theta. Perpendicular by base. What is perpendicular? 3. What is base? 4. 3 by 4 meter per second. Now, and the velocity is constant. ये कैसे बोल दिया मैंने? कैसे बोल दिया? क्योंकि 0 और 4 सेकंड के अंदर एक ही लाइन है, मतलब सिंगल वेलोसिटी काम कर रहा है. अगर डबल लाइन होता तो दो वेलोसिटी काम होता. दो वेलोसिटी काम होता, देन आई कैन से वेलोसिटी इज चेंजिंग. बट 0 और 4 के अंदर सिर्फ एक ही लाइन है, दैट मींस एक ही सिंगल वेलोसिटी है. ठीक है? दैट मींस वेलोसिटी इज कांस्टेंट, दैट मींस एक्सेलरेशन इज 0, फोर्स इज 0. अगेन t ग्रेटर देन 4, ये केस और ये केस सेम आएगा. t ग्रेटर देन 4, व्हाट इज वेलोसिटी? स्लोप ऑफ cd. अगेन cd इज पैरेलल टू x एक्सिस, tan 0, velocity 0, acceleration 0, force 0. Done? Okay? So in all the three cases the force is 0. Now what's the next question? उसी का next part क्या है? Let's go for that. गुम हो गया क्वेश्चन. हाँ. B. Impulse at t equals to 0 and at t equals to 4. So at t equals to 0 second impulse क्या होगा? तो what is impulse? Impulse is change in momentum. Final momentum minus initial momentum. Right? Final momentum minus initial. There is change in momentum. That is impulse. Okay. तो तुम्हें देखना है फाइनल मतलब क्या, इनिशियल. 0 पे निकालना है. तो 0 को उस तरफ हो गया फाइनल, 0 के इस तरफ हो गया इनिशियल. ओके. तो मुझे देखना पड़ेगा 0 को इस तरफ का वेलोसिटी कितना है, 0 के इस तरफ का वेलोसिटी कितना है. दैट मींस मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी. ओके. अब देखना ध्यान से क्या करेंगे हम. तो इंपल्स इक्वल्स टू मास इज 4 kg. v माइनस v कॉमन निकाल दिया. अब v, व्हाट इज v? वेलोसिटी आफ्टर 0 सेकंड, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 0 सेकंड कितना वेलोसिटी है? आफ्टर 0 सेकंड ये है स्लोप ऑफ OC. सो दैट इज 3/4. क्लियर?
So I can say it is slope of OC minus slope of before 0 second. Okay, before 0 second क्या होगा? Let me take this call. Okay, so मुझे समझ में आ गया. Impulse is final momentum minus initial momentum. Momentum is mass into velocity. तो अगर 0 पे पूछा है तो 0 के उस तरफ वाला फाइनल होगा और 0 के इस तरफ वाला इनिशियल होगा. That is more than 0 is final velocity, less than 0 initial velocity. तो more than 0 मतलब which area? This area. तो इस एरिया में ये लाइन है, दैट मींस स्लोप ऑफ OC. फाइनल वेलोसिटी इज स्लोप ऑफ OC माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्लोप ऑफ OV. ओके, कैलकुलेट कर लो. स्लोप ऑफ OC कैलकुलेट करने से गायब नहीं है. नेक्स्ट, एट 4 सेकंड अगेन मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? 4 के उस तरफ. तो 4 के उस तरफ कौन सा लाइन है? CD. सो स्लोप ऑफ CD माइनस स्लोप ऑफ OC. CD का स्लोप अगेन 0 होगा, दैट वी हैव कैलकुलेटेड, एंड OC का माइनस 3 kg मीटर पर सेकंड. Okay, let's go for the next question, class. Okay, class, let's go to the next question, 5.25. Again, a quite an interesting question. The question says that there's a figure. This figure is given here, where we have a rotator belt here. Which belt is rotating like this? The belt is moving like this. Here there are two pulleys which are rotating in this way. So if the pulleys are rotating this way, the belt will move in this way. And the acceleration of the belt is given to 1 meter per second square. And there is a person on the belt, over the belt, and this person is stationary. ऐसा बोला गया है, ठीक है ना? Person stationary है, कहीं move नहीं कर रहा. Done? Okay, and the person mass is given to you 65 kg. And coefficient friction of the man's shoes and the belt is 0.2. There is a friction, some friction is there. That is 0.2. Now the question is, first question is, what is the option नहीं दिया है, 1 2 ऑप्शन में दिया है, बट लिखा है व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द मैन. इस आदमी में कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है ना? तो आदमी में कितना फोर्स लग रहा है? ये बेल्ट अगर ऐसे जा रहा है तो पर्सन इज स्टेशनरी विथ रेस्पेक्ट टू बेल्ट. अगर मैं देखूंगा यहां से खड़े होके तो बेल्ट के साथ आदमी भी तो आगे जा रहा है ना, जा रहा है. तो कितना एक्सेलरेशन से जा रहा है? जितना एक्सेलरेशन बेल्ट का है. सो इफ आई से A is the acceleration, capital A is the acceleration of the body, the person. So that is nothing but is equals to A, that is 2 meter per second square. To the person who is standing outside, उसके लिए इस बॉडी में कितना फोर्स, कितना एक्सेलरेशन लग रहा है? इतने लग रहा है. कहां पे? फॉरवर्ड डायरेक्शन में. इतने एक्सेलरेशन से बॉडी आगे जा रहा है, इस एक्सेलरेशन से बॉडी आगे जा रहा है. दिस इज क्लियर क्लास? आई होप सो. तो इसको मैं अलग से बनाता हूं. चलो, ये हो गया पर्सन जिसका मास है. ये बॉडी आगे जा रहा है विद एक्सेलरेशन A, ठीक है ना क्लास? अंडरस्टूड. तो इसमें कितना फोर्स लगेगा? तो इसमें कितना फोर्स लगेगा? फोर्स भी इसी तरफ लगेगा. कितना लगेगा? M A. हाउ मच इज द फोर्स एक्टिंग? मास इनटू एक्सेलरेशन. मास इज 65 kg into R, that is 65 Newton is the force acting on the body. Very clear. First question is very easy. फोर्स लग गया, मास इनटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन ऑफ द बेल्ट कितना है? 1 मीटर पर सेकंड. वही एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी भी होगा, बिकॉज द पर्सन इज स्टेशनरी विथ रेस्पेक्ट टू बेल्ट. ओके, नॉट विथ रेस्पेक्ट टू द आउटसाइड पर्सन. तो दूसरा आदमी को इस बॉडी का एक्सेलरेशन कितना दिखेगा? सेम जो बेल्ट का एक्सेलरेशन. डन. अब जो सेकेंड पार्ट है, दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. द सेकेंड पॉइंट इज सेइंग if the coefficient of static friction between the man's shoes and the belt is 0.2, up to what acceleration of the belt can the man continue to be stationary related to the belt? Okay. अब ऐसा क्यों पूछ दिया? Try to understand nicely. जब ये फोर्स लगेगा, ये जो फोर्स लग रहा है, ये किसको लग रहा है? अब ये मैन को लग रहा है. But it appears to whom? It appears with respect to outside a person is standing. अगर मैं इसी बेल्ट पे खड़े होके देखूं इस आदमी को, तो ये आदमी कहीं नहीं जा रहा है, बिकॉज बेल्ट के साथ ही मूव कर रहा है. विथ रेस्पेक्ट टू बेल्ट, दिस मैन इज नॉट मूविंग. द फोर्स विच इज एक्टिंग हियर इज एक्टिंग विथ रेस्पेक्ट टू द स्टेशनरी बॉडी. ओके, एंड द मैन इज नाउ एक्सेलरेटिंग. तो ऐसे ही केस हमने पहले भी किया था लास्ट वीडियोज में, ट्रक वाला, जिससे बॉक्स वॉज नॉट मूविंग, ओके, विथ रेस्पेक्ट टू द ट्रक.
विथ रेस्पेक्ट टू ट्रक, ट्रक का जो एक्सीलरेशन था बॉक्स पर भी उतना एक्सीलरेशन था फॉरवर्ड में. ओके अंडरस्टूड. तो उस केसेस में विथ रेस्पेक्ट टू ट्रक इट वाज मूविंग बैकवर्ड, उसमें एक सीडो फोर्स लग रहा था जो बैक ले जा रहा था, राइट. वैसे इस आदमी में बेल के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी, उसे फोर्स इतना लगा. सिंस ए बॉडी एक्सीलरेटेड है तो उतना ही ऑपोजिट एक फोर्स लगेगा जिसको आप बोलेंगे स्यूडो फोर्स. तो व्हाट इज दिस P? P is a pseudo force. Pseudo force acting on the man, acting on the person. Which direction? Backward direction. इस फोर्स के कारण वो बॉडी स्टेशनरी नहीं होगा, गिर जाएगा ना, पीछे की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा ना. हाँ, तो इस फोर्स के कारण वो पीछे की तरफ जाएगा, वो स्टेशनरी नहीं रहेगा. डू यू अंडरस्टैंड दिस? कि वो स्टेशनरी नहीं रहेगा. सो दिस इज द फोर्स acting on the man because of the acceleration of the belt, and because the man was stationary with respect to belt. That means man and belt both moving with the same acceleration 1 meter per second square. So man has certain force, but since the man has certain force acting, that means this man is an accelerated body, non-inertial frame. That means there will be some pseudo force acting. Okay, क्लियर. सो विथ रेस्पेक्ट टू बेल, अब मैं अगर बेल के रेस्पेक्ट में देखूं मैन को, बेल के रेस्पेक्ट, क्योंकि बेल के रेस्पेक्ट में ये फोर्स नहीं लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है. वाई? बेल के रेस्पेक्ट में इस फोर्स के कारण मास नहीं मूव कर रहा, मास और बेल दोनों स्टेशनरी चल रहे हैं. तो अगर मैं बेल के रेस्पेक्ट में इस मास को देखूं तो इस मास में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, मास. क्लियर. अगर बेल के रेस्पेक्ट में मास को देखूं तो इस मास में कोई फोर्स नहीं लग रहा. हाँ, एक फोर्स लगेगा, वो इस फोर्स के बाद लगेगा, स्यूडो फोर्स. ओके, तो अगर बाहर से अगर किसी बेल्ट मास को देखूंगा देन द फोर्स इज दिस, दैट इज 65 न्यूटन. ओके, क्लियर. बट व्हेन आई सी द मूवमेंट ऑफ द पर्सन विथ रेस्पेक्ट टू बेल्ट, बिकॉज ऑफ दिस स्यूडो फोर्स दिस मैन ट्राइज टू मूव बैकवर्ड. देयरफॉर द फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन. सो व्हाट इज दिस? F is the frictional force. Frictional force on the person, okay, which is acting forward. कहाँ लग रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो हमको कैसे पता चला कि बॉडी पीछे जाएगा? बिकॉज ऑफ द स्यूडो फोर्स बॉडी पीछे जाएगा. ओके, सो अगेन आई एम सेइंग whenever any body is a non-inertial frame with respect to a inertial frame, मैं इस बॉडी को अगर बाहर से देखूं, बाहर से, तब स्यूडो फोर्स दिख रहा है मेरे को, क्योंकि मैं इस ये नॉन इनर्शियल फ्रेम क्योंकि एक्सीलरेटेड बॉडी है. ठीक है ना क्लास? तो अगर मैं किसी अलग अलग फ्रेम से देखूं तब स्यूडो फोर्स का बात करते हैं, नहीं तो हम बात नहीं करते हैं स्यूडो फोर्स का. तो अगर मैं बाहर से देखूंगा बॉडी को तो उसमें कितना एक्सीलरेशन लग रहा है? ए, जितना बेल्ट का है. फोर्स कितना लगा? 65 मीटर. क्लियर. साथ ही साथ उस एक्सीलरेशन के कारण उस बॉडी में एक अलग सा एक पीछे की तरफ फोर्स लगता है. तो स्यूडो फोर्स किन बॉडीज में लगता है? स्यूडो फोर्स उन बॉडीज में लगता है जो एक्सीलरेटेड है. ठीक है ना? कि ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. एक्सीलरेटेड बॉडीज में लगता है. अगर मैं बेल्ट में खड़े होकर देखूं बॉडी को, अगर मैं बेल्ट में खड़े होकर बॉडी को देखूं तो बॉडी कहीं मूव नहीं कर रहा. ओके, तो बेल्ट में अगर मैं खड़े हो जाऊं तो बेल्ट एंड बॉडी बोथ आर स्टेशनरी. दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो स्टेशनरी मतलब बॉडी में कोई एक्सप्रेशन नहीं है, लेकिन मैं बाहर से देखूं तो बॉडी में एक्सप्रेशन है. ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफरेंट टू टाइप्स ऑफ इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम. ओके, सो इनर्शियल फ्रेम कहाँ? जिससे बॉडी एक्सप्रेशन में नहीं है, एक्सप्रेशन जीरो. नॉन इनर्शियल फ्रेम कब? जब बॉडी में एक्सप्रेशन होगा. तो मैं जब बाहर से देखूंगा तो बॉडीज में ये फोर्स तो लग ही रहा है, साथ में एक सीडो फोर्स भी लग रहा है, क्योंकि वो मैं इनर्शियल फ्रेम से नॉन इनर्शियल फ्रेम को देख रहा हूं. Understood class? Now, see, so this due to this pseudo force, so why this pseudo force is acting? Because there is one force acting on the body. Okay, because of the belt movement, and with respect to belt, the body is not moving anywhere. एक तो बेल्ट के रेस्पेक्ट में वो मूव भी कर रहा है, जो कि बेल्ट में खड़े होकर मैं नहीं देख सकता, मुझे बाहर देखना पड़ रहा है नॉन इनर्शियल फ्रेम से. क्लियर? तो इसलिए मैं स्यूडो फोर्स के साथ डील कर रहा हूं. तो ड्यू टू द स्यूडो फोर्स बॉडी विल ट्राई टू मूव बैकवर्ड. ओके, and since it's trying to move backward, that means the frictional force will act
opposite direction. So what is that frictional force acting? Mu into m. And what is that m? m ऊपर लगेगा, mg नीचे लगेगा. That is equals to mg, mu mg. अब क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्सेलरेशन कितना हो बॉडी में. ओके, एक्सेलरेशन कितना होगा इस बेल्ट का सच दैट ये बॉडी स्टिल स्टेशनरी हो. तो ये बॉडी स्टेशनरी होने के लिए ये स्यूडो फोर्स जिस बॉडी को पीछे मूव करेगा और ये फ्रिक्शनल फोर्स जो इस बॉडी को रोकेगा, दोनों इक्वल होना चाहिए. फॉर स्टेशनरी द फोर्स विच विल अलाउ द बॉडी, स्यूडो फोर्स जो उसको पीछे मूव करेगा, एंड द फ्रिक्शनल फोर्स जो उसको पीछे मूव करने के लिए रोकेगा, दोनों फोर्स इक्वल होना चाहिए. क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स. अगर दोनों फोर्स इक्वल हो गया, बॉडी स्टिल स्टेशनरी रहेगा. हाँ, अगर ये स्यूडो फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से कम हो गया, ये ज्यादा हो गया, अगर स्यूडो फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा? बॉडी पीछे चला जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन उसको रोक रहा था, लेकिन ये फोर्स कम हुआ तो बॉडी पीछे चला जाएगा. ओके, बॉडी मूव करना स्टार्ट हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू बेल्ट. तो मुझे मूव नहीं करवाना है, मुझे स्टेशनरी रखना है, मैं तो दोनों फोर्स इक्वल होगा. तो अब ये स्यूडो फोर्स किसके बराबर होता है? इस फोर्स के बराबर होता है, राइट? सो स्यूडो फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू द फोर्स which is acting because of the acceleration of the belt. So now let A1 is the new acceleration. A1 is the new acceleration of the belt. तो ये F हो जाएगा m into A1. मुझे नया एक्सेलरेशन निकालना है ना, कितना एक्सेलरेशन तक वो स्टेशनरी होगा. तो मैंने मान लिया कि वो A1 एक्सेलरेशन तक स्टेशनरी होगा. ओके, तो जो फोर्स लगेगा वो होगा m इंटू, फोर्स क्या था? m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द बेल्ट. इनिशियली एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड था, लेकिन उसके बाद मैंने एक्सेलरेशन को चेंज किया बेल्ट का, सच दैट स्टिल इट इज स्टेशनरी. तो मैं चेंज करने के बाद फोर्स m होगा, दैट इज इक्वल टू स्यूडो फोर्स. तो कैन आई से ma1 विल बी इक्वल्स टू म्यू mg. तो यहां से क्या हुआ? m कर दिया. व्हाट इज a1? म्यू इनटू g. व्हाट इज म्यू? 0.2 into g. take it as 10. क्वेश्चन में अगर g 10 नहीं बोला जाए तो 9.8 लोगे. तो हाउ मच यू गॉट? a1 इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक स्पीड जो रहेगा एक्सेलरेशन का, ओके, तब तक बॉडी स्टेशनरी होगा. ओके, उसके बाद क्या होगा? कुछ नहीं होगा. ओके, एक और चीज बात करें. ये जो एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड, अब जो मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था, इससे ज्यादा कि इससे कम, तो तुम खुद बताओ ये बॉडी मूव करना किसके कारण मूव करेगा? स्यूडो फोर्स के कारण. स्यूडो फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर हो तो मूव नहीं करेगा. तो कैन आई चेंज दिस इन दिस वे? सी, फ्रिक्शनल फोर्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू स्यूडो फोर्स, तब तक बॉडी मूव नहीं करेगा. अगर स्यूडो फोर्स बड़ा हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स जो वहां पे बोला था तो मूव करने लगेगा. तो यहां से क्या आ रहा है? एक्सेलरेशन शुड बी लेस देन इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड. मतलब मैक्सिमम 2 मीटर तक स्टेशनरी रहेगा. उसके बाद अगर चला गया तो वो स्टेशनरी नहीं रहेगा, मैन मूव करने लगेगा. सो अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेट्स हैव अ स्मॉल रिकैप. इन दिस स्यूडो फोर्स का कहानी वी डिड 2 क्वेश्चंस इंक्लूडिंग दिस 2 क्वेश्चंस ऑफ स्यूडो फोर्स. इन बोथ द क्वेश्चंस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हेन वी आर डीलिंग विद द स्यूडो फोर्स. जो हमने ट्रक वाला क्वेश्चन के साथ काम किया था, हमने क्या किया था? हमने लिया था एक बॉक्स, जितना ट्रक का एक्सेलरेशन था उतने बॉक्स का एक्सेलरेशन था, जिसके कारण फोर्स ऑन द बॉक्स इस तरफ था. क्लियर? ये फोर्स किसको दिख रहा है? जो आदमी इनर्शियल फ्रेम में है. मैं खड़ा हूं ना, रुका हूं ना, तो मुझे ये दिख रहा है कि एक्सेलरेशन बॉक्स आगे जा रहा है. ओके, लेकिन ये मैंने क्या किया? इनर्शियल फ्रेम से नॉन इनर्शियल फ्रेम को देखा, इनर्शियल फ्रेम से नॉन इनर्शियल फ्रेम को देखा, तब एक स्यूडो फोर्स लगता है बॉडी में. क्लियर? उसके ऑपोजिट ऐसा ही कुछ यहां भी है. बेल्ट के साथ मैन भी आगे जा रहा है. विथ रेस्पेक्ट टू बेल्ट मैन रुका हुआ है, लेकिन मैन तो बेल्ट के साथ आगे जा रहा है. तो विथ रेस्पेक्ट टू मी, अ बॉडी हु स्टैंडिंग एंड ऑब्जर्विंग द बेल्ट, आई कैन सी दैट मैन इज मूविंग फॉरवर्ड विद द सेम एक्सेलरेशन बाय व्हाट द एक्सेलरेशन ऑफ द बेल्ट इज. मतलब उस मैन में उतना ही फोर्स लगेगा, उतना ही एक्सेलरेशन का फोर्स लगेगा जितना एक्सेलरेशन बेल्ट का था, 65 मीटर. ये फोर्स कहां लग रहा है? आगे की तरफ. तो अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं इनर्शियल फ्रेम से नॉन इनर्शियल को देख रहा हूं, एक्सेलरेटेड बॉडी को देख रहा हूं, तो तब एक स्यूडो फोर्स का मैं बात कर रहा हूं. सो स्यूडो फोर्स तब लेके काम करते हैं. ओके, अब
नेक्स्ट व्हेन वी मेक इक्वेशंस, जैसे इस केस में जब मैंने इक्वेशन बनाया था, मैंने शून्य फोर्स लिया था और फ्रिक्शनल फोर्स लिया था। इस फोर्स को लेके मैंने इक्वेशन नहीं बनाया, ये भी समझो। दो ये फोर्स भी लग रहा है, लेकिन मैंने जो इक्वेशन बनाया था वो विद रिस्पेक्ट टू ट्रक बनाया। ट्रक के रेस्पेक्ट में बॉडी कहां जा रहा है, तो ट्रक के रेस्पेक्ट में ये फोर्स उस ट्रक बॉडी को इधर ले जा रहा है, ये फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। यहां विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट शून्य फोर्स बॉडी को पीछे ले जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स यहां ले जाएगा। ओके, तो हम सिर्फ इन दोनों से इक्वेशन से, इन दोनों फोर्स से इक्वेशन बनाएंगे। ये फोर्स के साथ इक्वेशन नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये फोर्स किसको दिख रहा है, बाहर वाले आदमी को दिख रहा है, विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट नहीं दिख रहा है क्लास। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, बहुत हुआ एनसीईआरटी क्वेश्चन क्लास। लेट्स डू सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। A mass of 200 kg is placed in a rough inclined plane of angle 30 degree. Okay, if mu L equals to coefficient of friction, limiting friction, mu L, coefficient of limiting friction is 1 by root 3. Find the least force in Newton acting parallel to the plane. जो फोर्स लगाना है वो कैसा लगाना है, parallel to the plane. ये प्लेन है से parallel. To keep the mass from sliding down. Next, to move the mass up the plane. ये ध्यान से समझना, ये पूरा क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, टू कीप द मास फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन। कितना फोर्स लगाऊं कि वो नीचे ना गिरे। ओके, सो लेट्स टेक अ बॉडी, उसका मास कुछ दिया हुआ है, मास इज गिवन टू 200 ग्राम। ओके, 200 kg। अब देखते हैं इसमें क्या क्या फोर्स लग रहा है। एक लग रहा है mg इधर, एक लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन इधर। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये कहा जाएगा काम, टू कीप द मास फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन। स्लाइडिंग डाउन से रोकने के लिए। ओके, स्लाइडिंग डाउन से मतलब बॉडी स्लाइड करने का कोशिश कर रहा है, मतलब नीचे जा रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर लगेगा। ये समझ में आया, बॉडी नीचे जाने वाला है, फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर लगेगा। ओके, कैसे पता चला ऊपर लगेगा, बिकॉज टू कीप द मास फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन, मुझे ऐसा एक फोर्स लगाना है जो कि उसको स्लाइड करने के लिए रोकेगा, मतलब नीचे जाने का कोशिश कर रहा है। अब नीचे जाने की कोशिश क्यों कर रहा है, दिस एंगल इज 30 डिग्री, क्यों कर रहा है, कहां कोई फोर्स लग रहा है इस तरफ, तो इसको रिजॉल्व करो mg को। ये 30 है तो ये भी 30 होगा, इधर आएगा mg cos 30 और इधर लगेगा mg sin 30। क्लियर। अब इस फोर्स के कारण वो नीचे जा रहा है, जाने का कोशिश कर रहा है, सिर्फ कोशिश कर रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर लगेगा। तब मैं कहां फोर्स लगाऊं कि ये रुक जाए बॉडी, ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ। अगर मैंने नीचे की तरफ फोर्स लगा दिया, बॉडी को हेल्प किया नीचे जाने के लिए, लेकिन मेरे को तो रोकना है ना, मतलब मुझे एक फोर्स ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा। ये समझ में आ गया। ओके, ये समझ में कैसे पता चला ऊपर की तरफ लगाना, क्योंकि मुझे हेल्प करना है इसको, मुझे इसको स्लाइड डाउन करने के लिए हेल्प करना है। क्लियर। और फ्रिक्शन ऊपर की तरफ क्यों लग रहा है, क्योंकि ये नीचे जाने का कोशिश हो रहा है, टू कीप द मास फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन। वो स्लाइडिंग डाउन होने वाला है, मतलब वो नीचे जाने का कोशिश कर रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर लगेगा। ओके, अब मुझे इस बॉडी को रोकना है, तो मुझे फोर्स ऊपर लगाना पड़ेगा। ओके, अब इस बॉडी को मैंने रोक दिया, दैट मींस व्हाट, इस तरफ वाला फोर्स विल बी इक्वल टू इस तरफ वाला फोर्स mg sin 30, p plus f equals to 2, then the body will be stationary। क्लियर। यहां से p निकाल लेना, mg sin 30 minus f, तो mg sin 30 minus f is what, mu into n। what is n? n is equals to mg cos 30, mg sin 30 minus mu into mg cos 30। I hope you understand class. Now from there you can calculate on your own how much you will get। चेक कर लो, 0 आएगा, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट केस। नेक्स्ट, टू मूव द मास अप द प्लेन, इसको ऊपर लेके जाना है, इस बॉडी को ऊपर लेके जाना है, तो इसमें क्या क्या फोर्स लगेंगे। पहले ये जो बेसिक फोर्स लग रहा था वो लगा दो, mg नॉर्मल रिएक्शन। अब इसको कहां मूव करना है, ऊपर जाना है, तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे लगेगा। इससे बॉडी नीचे जा रहा था तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगा, और जैसे मैंने इस बॉडी को रोकना है नीचे जाने के लिए, तो उसको ऑपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा। इस बॉडी को नीचे जाने के लिए रोकना है तो उसको ऑपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा। एट दिस सिचुएशन बॉडी कहीं मूव नहीं कर रहा था, इक्विलिब्रियम में था, दैट मींस ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल होगा। इसमें क्या था, बॉडी को ऊपर लेके जाना है, मतलब मोशन ऊपर की तरफ होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे लगेगा। एज वेल एज mg का रिजोल्यूशन भी होगा, एंगल इज 30 डिग्री, ये 30 है, तो इधर आएगा mg cos 30 और इधर लगेगा mg sin 30। ओके,
अब मुझे इसको ऊपर ले जाने के लिए कितना फोर्स चाहिए, तो P लगा दो। तो किसी बॉडी को मूव करने के लिए कितना फोर्स चाहिए होता है, जितना उस फोर्स रोक रहा है, तो उसको ऊपर लाने के लिए कौन कौन सा फोर्स रोक रहा है, mg sin 30 प्लस f, ये दोनों फोर्स रोक रहे हैं। देन यू कैलकुलेट f, mu into n, same way, n is equals to mg cos theta, from there we will get the value of P. I hope you can understand. Now I want to discuss one more thing here. What is that? That is, यहाँ पे एंगल दिया ना 30, तो अगर sin 30 कितना होता है 1/2। In few numericals से साइन में लिख लेना, in few numericals it is written like this: inclined plane, we have a plane of inclination 1/2, ऐसा लिखा होता है कभी कभी। एंगल ना देके बोला जाता है इंक्लिनेशन 1/2, that means sin theta is given to you 1/2. Okay, so don't get confused by these words. Inclination 1/2, 1/20, 1/4, that means sin theta का वैल्यू दिया हो। I hope you understand. I think you clear about these two things, right? Plus, okay, दोनों में P ऊपर लगाना है। इसमें P ऊपर क्यों लगाना है, क्योंकि इसको नीचे जाने के लिए रोकना है। फ्रिक्शन इधर क्यों लग रहा था, पहले P नहीं आया था, पहले mg sin थीटा आया था, इससे कारण वो नीचे जा रहा था, स्लाइड नीचे स्लाइड होने वाला है, इसलिए फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया, एक फोर्स लगा दिया ताकि बैलेंस हो जाए, नीचे ना जाए। यहाँ पे क्या है, बॉडी को ऊपर लेके जाना है, तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा। ओनली द फ्रिक्शन इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास। Now see, student, see, lots of numericals I have solved in the videos. Now, just put in your mind that you have to solve lots of numericals. As many numericals you will solve, it is less for you. And since nowadays you are having MCQ based questions, so basically numericals will be asked. Okay, now see, have a count of like this. If I am doing for a particular chapter 15 numericals in the video, we have to go 3 times 45 numericals at a home altogether. So whatever the homework I am giving you now, please do those numericals definitely. Now I will be sharing one more PDF with you named as Laws of Motion Numericals. The PDF name as Laws of Motion Numericals. Numericals आगे लिख दिया ना, पीछे होगा, ठीक है ना। उसमें ये सब पेजेस डाला जाना, 5/51, 11, 12, 5/55, 26, 27, 56, 31. All these you have to do at your home. Okay. Now, still 3 numericals more to go. Let's discuss one more. In the same PDF, you will get page number 5/67. Go to the page number 5/67. Example 66. Under the typical numericals. Here, what the question is? We have 3 masses like this: 5 kg, 2 kg, 3 kg. 3 masses and 3 strings are there. Okay. Each string has tension T1, T2, T3. This is the figure given in the book. You have to find the value of tension T1, T2, T3 in 2 cases. First, when the whole system is moving upward with some acceleration 2 meter per second square. Okay, इस चीजों को समझना। तो कैसे निकालना है, सबसे पहला काम, whatever the tension the direction is given to you, you have to add few more tensions. What I have told you, tension is always directed opposite to point of contact. तो इस वायर में यहां से ऑपोजिट है, यहां से भी एक T2 लगेगा, इस वायर में यहां से भी एक T3 लगेगा। हो गया। अब कैसे निकालना है, आई विल ओनली मेक द इक्वेशंस। ओके क्लास, दिस इज योर जॉब टू डू इट एट होम। सबसे पहले एक प्रैक्टिकल नॉलेज सोचो, ये जो वायर है ये इस तीनों के मास को पकड़ के रखा है, लेकिन इस वायर में सिर्फ इन दोनों के मास को पकड़ के रखा है, और इस वायर में सिर्फ इस मास को पकड़ के रखा है। व्हाट आई वांट टू से इज दैट दिस वायर, द टेंशन ऑफ दिस वायर इज होल्डिंग द मास ऑफ ऑल 3. सो व्हेन यू विल मेक द इक्वेशन फॉर T1, तो टेंशन ऊपर लग रहा है T1, लेकिन जो वेट लग रहा है वो है M1 प्लस M2 प्लस M3G। टोटल वेट पकड़ा है उसने, ये समझो। इस वायर ने इस तीनों मास के वेट को पकड़ा है, और दिस वायर इज गोइंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन A। तो इसकी इक्वेशन तो बड़ा आराम से बन जाएगा, T1 माइनस M1 प्लस M2 प्लस M3G इक्वल्स टू नेट फोर्स M1 प्लस M2 इंटू M3 इंटू A। Acceleration is given to you from the calculate T1. तुम्हारा काम है बाकी। अब अगर मैं मास 2 से पकड़ू, टेंशन 2 को पकड़ू, टेंशन 2 ने ये दोनों के वेट को पकड़ा है, तो M2 प्लस M3G एंड द बॉडी इज मूविंग विद एक्सेलरेशन। तो इसका इक्वेशन क्या होगा,
ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स इक्वल्स टू नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन इज गिवन टू यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. यहां से यू कैन कैलकुलेट T2. अब मैं अगर तीसरे मास को पकड़ू M3, T3 वायर को पकड़ू, T3 जो टेंशन लग रहा है वो सिर्फ एक ही मास के वेट को पकड़ा है, ओनली दिस मास वेट, एंड द होल बॉडी इज मूविंग विद एक्सेलरेशन ए. इसका इक्वेशन क्या होगा? T3 माइनस M3G equals to M3A. From there you can get the value of T3. So from this equation we'll get the value of T2. From here we'll get the value of T1. This is first question. The next question is find the tension values when the whole system is stationary. इसका मतलब क्या? एक्सेलरेशन 0. तो ये इक्वेशन तो यही बनेगा, बस यहाँ पे एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 लगा दो. मतलब T1 equals to this, T2 equals to this, T3 equals to this. I hope you can continue with the question. Then also if you don't know how to do it, please see the solution. But what I will say, you don't see the solution. तुम्हें समझ में आ गया ना क्या करना है? You understand how to make the equations, right class? So when the body is stationary, तो बोला है when the system is stationary. तो stationary मतलब क्या? Stationary मतलब acceleration is 0. अब एग्जाम में ऐसा ही पूछ सकता है when the system is moving with uniform velocity. क्वेश्चन को चेंज कर दिया, बोला यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, तो तुम लोग डरना मत, तब भी तो एक्सेलरेशन 0 होगा ना. देन ऑल्सो इक्वेशन विल रिमेन द सेम, एक्सेलरेशन की जगह 0 डाल दो, हो गया. ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन विच विल फाइंड इन द पीडीएफ. नाउ चेक द क्वेश्चन नंबर 67 जस्ट बिलो द 66. 67 क्वेश्चन में चले जाओ. ओके, यहाँ पे बोला है व्हाट इज द टेंशन इन द रॉड ऑफ लेंथ L एंड मास कैपिटल M एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम F1. At a distance y from F1, what is the tension in the rod? नहीं, टेंशन बुक में दिया हुआ है, टेंशन का डायरेक्शन मैंने नहीं दिया है, एग्जाम में नहीं होगा. तुम्हें सिर्फ बोलेगा व्हाट इज द स्ट्रेच एट अ डिस्टेंस y. नहीं, स्ट्रेच क्यों होगा? दोनों तरफ से दो फोर्सेस लगाया हुआ है सच दैट F2 इज लेस देन F1. ऐसा बोला गया है. F2 इज लेस देन F1. F1 बड़ा है, ये वाला फोर्स बड़ा है. तो जब मैं इस रॉड को दोनों से खींचूंगा तो कोई भी एक लेंथ ले लो, वहां पे थोड़ा खिंचावट होगी ना, होगा ना, दैट इज कॉल्ड टेंशन. मतलब इस वाले पार्ट में, ट्राई टू अंडरस्टैंड. इस तरह से खींच रहे हैं ना इसको, तो एक टेंशन इधर होगा और एक टेंशन इधर होगा. नाउ द क्वेश्चन इज कौन सा टेंशन किस तरफ? ओके, तो ये जो टेंशन है वो इस पार्ट में लगेगा, क्योंकि जब ये पार्ट अंदर खींचेगा तो ये इस तरह से खींचेगा ना, क्लियर. और ये जो टेंशन है वो इस पार्ट में होगा, इस पार्ट में. ये समझना है कौन सा टेंशन किस तरफ का, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हिच टेंशन इज एक्टिंग देयर, देन व्हाट हैपेंस, यू विल वोंट एबल टू मेक द इक्वेशंस ओनली. ओके, तुम इक्वेशंस बना नहीं पाओगे क्लास, दैट इज द प्रॉब्लम. सो व्हिच टेंशन एक्टिंग वेयर, दैट इज अ बिग इश्यू हियर. ओके, सो दिस टेंशन, दिस वन is acting in this part. Clear? क्योंकि ये इस तरफ खींच रहा है ना, टेंशन ऑपोजिट टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है ऐसे करके. ये जो पार्ट है इसमें इस तरफ फोर्स लगा F1, ये वाला पार्ट है y डिस्टेंस वाला, y लेंथ वाला, तो ये इस तरह से खींचेगा तो क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है ये इस तरफ जाने का कोशिश करेगा, अटैच होने की कोशिश करेगा. क्लियर? ओके, सिमिलरली दूसरा जो पार्ट है वो है L माइनस वाई. Let this part animate as L minus y. इसमें जो टेंशन लगेगा वो कौन सा होगा, वो ये वाला टेंशन होगा, क्योंकि ये जब खींचेगा इस तरफ जा रहा है नहीं, तो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो ये वाला पार्ट इस तरफ खींच रहा हूं, इसका ऑपोजिट टेंशन लगेगा, स्ट्रेच होगा. ओके, नाउ आई नीड टू फाइंड व्हाट आई नीड टू फाइंड, आई नीड टू फाइंड दैट टेंशन वैल्यू. ओके, आई नो द टोटल मास इज m and total length is l. So how to do? So since this force is more than this force, that means the whole system will move in this direction with acceleration a. कैसे पता चला उस तरफ जा रहा है? क्योंकि F1 बड़ा है F2 से. ओके, अब मैं क्या करूंगा, एक एक सिस्टम पकड़ूंगा, उसका इक्वेशन बनाऊंगा, डायनामिक इक्वेशन, बिकॉज टू फोर्सेस एक्टिंग एंड द बॉडी इज मूविंग विद सर्टेन एक्सेलरेशन, तो डायनामिक इक्वेशन बना के एक्स वैल्यू निकालूंगा. सो लेट्स स्टार्ट विद 1 1 1. ओके, पहला केस इसके साथ काम करते हैं, जिसका है लेंथ L माइनस वाई. ओके, इसमें एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है F2, और ये पूरा सिस्टम आगे जा रहा है विद एक्सेलरेशन a. तो इसका इक्वेशन क्या होगा,
उस तरफ जा रहा है T माइनस F2 इक्वल्स टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन नेट फोर्स। इसका मास तुम्हें पता है, दैट इज द बिग इशू। इस क्वेश्चन को हम कर ही रहे हैं इसलिए क्योंकि मास, टोटल मास पता है और टोटल लेंथ पता है, इसका मास नहीं पता। तो जब भी मैंने फेस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वेयर masses are not given to you, okay, then you have to see what is given to you. The mass is, total mass is given to you, and what other parameter of that system is given to you, length. हाँ, इसी की जगह अगर एरिया लिखा होता तो हम क्या करते, हम मास पर यूनिट एरिया निकालते। सिंस यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है और इसका तुम, इस पार्ट का तुम्हें क्या पता है, लेंथ, तुम्हें एरिया नहीं पता, तुम्हें वॉल्यूम नहीं पता, तुम्हें लेंथ पता है, तो मुझे टोटल मास पता है, मास बाय लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ दैट पार्ट, दैट इज इक्वल्स टू मास ऑफ दिस पार्ट, इसका मास इनटू ए। ये समझ में आया कि नहीं आया, इतना बता दो बस। Now, let me not do too much of shortcuts, otherwise you will get confused at the end of the video. So, let this mass is m1, so m1 into a. इतना तो समझ में आ गया ना। इस तरफ जा रहा बॉडी T माइनस F2 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। डन। ओके, नेक्स्ट अगर मैं दूसरे बॉडी का बात करूं, इसके साथ बात करूं जिसका लेंथ y है, इसमें कैसा फोर्स लग रहा है, एक F1 राइट और एक टेंशन इधर, और बॉडी आगे जा रहा है। इसका इक्वेशन क्या होगा, F1 माइनस टी इक्वल्स टू m2a, लेट दिस मास इज m2। This is the second equation. Now, in these two equations, what I don't know? I don't know acceleration, I don't know tension, as well as I don't know masses. That is the problem. Till now, always masses पता होता था मेरे को, मास का वैल्यू मुझे पता होता था। अब इन दोनों इक्वेशन में मास का वैल्यू मुझे नहीं पता। बाकी एक्सेलरेशन और टेंशन तो मुझे पता है, सॉल्व करने से आ जाएगा आंसर, राइट? बट आई डोंट नो द मास वैल्यू। हाउ टू कैलकुलेट द मास वैल्यू? दैट इज द बिग इशू। Okay, so whenever the mass is you don't know the mass of the system, individual systems, then what you see, you check what is given to you. What is given to you? Total mass is given to you and total length is given to you. इसका मतलब अब मैं मास पर यूनिट लेंथ निकालूंगा, ओके, एंड द इंडिविजुअल सिस्टम का भी तुम्हें लेंथ पता है। सिंस इंडिविजुअल सिस्टम का तुम्हें लेंथ पता है, तो मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ दिस पार्ट कर दो, ओके। अगर तुम्हें ये लेंथ ना देके बोला होता टोटल एरिया है ए फॉर एग्जांपल, और इस इंडिविजुअल पार्ट का भी तुम्हें एरिया पता होता है, तो तब हम क्या करते हैं, मास पर यूनिट एरिया इनटू इंडिविजुअल पार्ट एरियाज। अगर वॉल्यूम टोटल दिया होता और इंडिविजुअल पार्ट का तुम्हें वॉल्यूम पता होता, तो क्या करते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ दैट पार्ट। सो अब मैं करता हूं क्या, T माइनस F2 विल बी इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ दैट पार्ट इंटू ए, और इसमें क्या हो जाएगा, F1 माइनस टी इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ दैट पार्ट इंटू ए। हो गया क्लास। नाउ आई नीड टेंशन वैल्यू, राइट? आई नीड टू फाइंड द टेंशन वैल्यू। तो क्या करोगे टेंशन निकालने के लिए, तो तुम क्या करो, पहले एक्सेलरेशन निकाल लो जो इजी लगे, बिकॉज मुझे टेंशन निकालना है। तो यहां से ए निकाल के यहां डाल दो और पूरे को सॉल्व करो, वहां से टेंशन आ जाएगा। दैट ऑल्सो यू कैन डू, ओके। तो क्या करते हैं, चलो सॉल्व करते हैं। T माइनस F2, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, इंटू एल डिवाइडेड बाई m इंटू एल माइनस वाई इक्वल्स टू ए। एल ऊपर गया, m इंटू एल माइनस वाई रहेगा, इसको यहां डाल देते हैं, यहां से मुझे टेंशन मिल जाएगा। F1 माइनस टी इक्वल्स टू m बाई एल वाई इंटू ए। व्हाट इज ए? T माइनस F2 इंटू एल डिवाइडेड बाई m इंटू एल माइनस वाई। तो देखो mm कर लिया। अब तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम है इस पूरे एक्सप्रेशन को खोलो, खोलने के बाद टेंशन वाले वैल्यूज को एक तरफ लेके आओ, बाकी को दूसरे लेके आओ, फ्रॉम देयर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टेंशन, ओके। तो कैसे खोले, लेट्स सी। तो ये एल भी कट गया, देखो। सो व्हाट इज लेफ्ट विद F1 माइनस टी इक्वल्स टू YT माइनस YF2 डिवाइडेड बाई L माइनस वाई। इस L माइनस वाई को इधर इंटू करो क्योंकि मुझे टी चाहिए, हाँ। तो F1 माइनस टी इंटू एल माइनस वाई इक्वल्स टू YT माइनस YF2। सो लेट मी सॉल्व, अदरवाइज द वीडियो बिकम वेरी लेंथी। ओके, सी व्हाट आई हैव टोल्ड यू। मैंने यहां से ए निकाल के वहां डाल दिया। दो इक्वेशंस, आई ऑलरेडी गॉट टू इक्वेशंस। द ओनली प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन वाज टू गेट द वैल्यू ऑफ मास, so I taught you how to get the value of mass. Now your job is to find the tension value. So what I'm doing, I'm taking out a from here and substituting here. Solve it, पूरा solve करो और टेंशन वाले पार्ट को एक तरफ रखो। तो पूरा सॉल्व करने के लिए इंटू करना पड़ेगा।
ये कट गया, ये कट गया, तो y इंटू टी इंटू वाई इंटू F2, L माइनस वाई इधर चला गया, मल्टीप्लाई करो दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, आफ्टर मल्टीप्लाई करेंगे y to y is cancelling out. Now in this equation I need t, तो t एक तरफ है ना, इसको एक तरफ लेके आओ, बाकी को उधर लेके जाओ, तो this two and this. So my job is to find the value of t. So what I'm doing, I'm keeping the t expression one side, rest everything other side. So this contains t, I'm shifting it one side, rest everything other side. अब मुझे t चाहिए, L को divide मारो. We got that. Okay class. Now we'll go to the last question of this chapter, laws of motion. Okay class, now see this question is quite interesting and it's actually an intense question. Assuming the length of a chain to be capital L and coefficient of static friction mu, calculate the maximum length of the chain which can be held outside a table without sliding. मान लो एक प्रैक्टिकल लाइफ में चल जाओ, एक टेबल है, तुम एक लॉन्ग चेन लो, साइकिल का चेन होता है ना, उसको लो, साइकिल के चेन में एक एक करके ऐसे ऐसे गोल गोल होता है ना, मान लो ऐसा एक चेन लिया, ठीक है ना, तो उस चेन को थोड़ा सा टेबल के बाहर निकाल दो और छोड़ दो, तो चेन को कुछ नहीं हो रहा है, थोड़ा सा और बाहर निकाल दो फिर छोड़ो, कुछ नहीं हो रहा, थोड़ा सा और बाहर निकाल देगा, चेन नीचे चला गया, ऐसा क्यों? तो वही पूछा गया है कि कितना लेंथ बाहर निकालो चेन का कि ये स्लाइड ना करे, तो ओके, तो कितना बाहर निकालूंगा कि ये स्लाइड ना करे. नाउ अगेन देखो इस क्वेश्चन में टोटल मास इज गिवन टू यू, नो इट्स नॉट गिवन टू यू, टोटल मास इज नॉट गिवन टू यू, ओनली टोटल लेंथ ऑफ द चेन इज गिवन टू यू. ओके, तो अब ये स्लाइड क्यों करेगा, किस लिए करेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड ना. ये पूरा मास एक चेन है, इस चेन का टोटल मास होगा कुछ, लेट दैट मास इज m, टोटल मास ऑफ चेन, जो कि मैंने खुद से लिया, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में टोटल लेंथ दिया हुआ है, दिस इज गिवन. ओके, नाउ जब इसका कुछ भाग मैंने y पार्ट नीचे लगाया, तो इस y पार्ट का कुछ मास होगा ना, वो मास नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा, राइट. उस मास के कारण एक टेंशन क्रिएट होगा, डन, और इस वेग के कारण ये पूरा चेन इधर जाने का कोशिश करेगा, बिकॉज ऑफ दैट एक फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा. इतना समझ में आ गया. अब मैं क्या करूंगा, अब ये चेन में हटा के व्हाट आई विल डू, आई विल कंसिडर टू मासेस. यहां पे एक मास रखा हुआ है m1 और यहां पे एक मास रखा हुआ है m2. व्हाट इज दिस m2? m2 इज द मास ऑफ दिस लेंथ जो टेबल में है. ओके, सो व्हाट इज m2? मास ऑफ चेन of length L minus y, and what is m1? mass of chain of length y जो हैंग कर रहा है. ओके, अब मैं सिचुएशन को देखता हूं. अब यहां पे m1g फोर्स लगेगा, यहां पे टेंशन लगेगा, ये पूरा सेम स्ट्रिंग है, सेम चेन है, तो टेंशन यहां भी इतना ही लगेगा सेम, और यहां पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा कैपिटल F, स्मॉल f, और क्या फोर्स लगेगा, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन, और यहाँ पे वेट लगेगा m2g. सो दिस इज द टोटल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द चेन इन द आउटपुट. तो अब मैं इसको रियल लाइफ में देखो, तो ये जो मास है ये है m2, इस पूरे मास में कुछ फ्रिक्शन लगेगा f, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, नीचे वेट लगेगा, और इस मास का जो वेट है, इस चेन का जो वेट है, इस लेंथ का जो वेट है वो नीचे लग रहा है, जिसके कारण ये इधर जाने का कोशिश करेगा. दैट्स व्हाई द फ्रिक्शन इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन. क्लियर? अब आई वांट the maximum length of the chain without sliding. That means कहीं move नहीं कर रहा है. That means all the forces are equal. Since no sliding, इसका मतलब m1g will be equal to t. Clear? And t will be also equal to frictional force. Okay. Now what is frictional force? Mu into n. And what is n? m2g. Okay. Clear? तो अब टेंशन का वैल्यू मिल गया. Therefore, what is m1g equals to mu m2g. इस इक्वेशन से मुझे y की वैल्यू निकालना है, खत्म. क्लियर? अंडरस्टैंड? तो इसको अगर मैं वैसे नहीं बनाऊंगा तो मैं इक्वेशन दिखा नहीं पाऊंगा. That's why I'm showing that thing. That's why I'm showing this as one mass, this as another mass. And this is not a string. Don't consider it as a string. ये पूरा एक चेन ही है, लेकिन चेन में टेंशन तो लगेगा ना. ओके, अंडरस्टैंड? अब वैल्यूज डालते हैं. चलो, What is m1? Mass of this part. अब मास तो दिया नहीं हुआ है. ओके, इस पार्ट का तो मास नहीं दिया, तो लेंथ दिया है ना, तो what I will टोटल मास बाय लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ
into length of that part, इस पार्ट का लेंथ y है, into g equals to mu. What is m2? Again mass per unit length into length of that part into g. Clear? इस पार्ट का लेंथ mass per unit length into length. So from this, see m by l is cancelling out, g is cancelling out. From the get the value of y, मुझे y निकालना है तो क्या हो जाएगा, y equals to mu l minus mu y. तो यहां से y कॉमन निकाल लो, 1 plus mu equals to mu l. So what is y? Mu l by 1 plus mu. So this is the part of length जो हम बाहर हैंग कर सकते हैं. इससे थोड़ा भी ज्यादा अगर हैंग किया तो बॉडी गिर जाएगा. Okay, so let me check the answer. Okay, we got the answer. And that is the end of the chapter Laws of Motion class. Okay, thank you very much.